Well, it's very difficult for me to define both the roles. I think they are very different. And as an athlete, of course, I've been performing for the country. And as chef de mission, my role is to perform for the athletes and to be able to give them all kinds of comfort requirements that they need during their stay at the Olympic Village. And having an athlete-centric approach with me and, of course, my deputy chef de mission Shiva and all the other staff members, I think the benefit and the comfort of the athletes is of utmost importance, and we are working towards it every day. So no one could have been a better person than you because you've been a player yourself. You've lived in Games Villages 2004 to 2012, winning the medal. So no one could have been perhaps better than, because you know what a player goes through when he comes to the village with an expectation, with a lot of pressure that you have to win a medal. Well, of course, there is absolute pressure in the Olympics. You can't not have pressure. And when it's your first Olympics, you have the pressure of first. When it's your second, you know that you've done one before and it's your second, so you have slightly more pressure. And then so on and so forth. So pressure at the Olympics you can never get used to. And but pressure is not bad. I think if you're able to handle it and channelize it towards positive performance. So I'm super excited to see how I can do. I'm just trying to focus on giving my best. It's definitely exciting to be here, especially in the Olympic Village. सब पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस बार मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करके ही जाएंगे, तो वही सोच के चलाएंगे। यही बेस्ट टाइम है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। मैं और भी अच्छा करूं टीम में, मिक्स टीम में या इंडिविजुअल में। जो प्लान हम लोग पिछले 2 साल से दिमाग में रख के चल रहा है कि गेम्स के लिए ऐसे प्रिपेयर होना है, हम लोग सही रास्ते पे है। Really excited to be racing on Sunday. That's when my race is. I'll be swimming 200 freestyle, and there are a lot of amazing athletes who will also be racing the event. So I'm super excited to see how I can do. I'm just trying to focus on giving my best and seeing how much I can do in this particular time of the season. And I know that this is not my last Olympics, so there's a long way to go. So I'm just mostly just excited, having fun in the moment. थे ना पेरिस में, तो वेदर से और रात यहाँ लेट होती है, तो सब चीजें सही हो गई हैं। Yeah, I really didn't think I was thinking to go to the Olympics. Obviously, I did this sport just to have fun, to get some friends and learn it as a licensed sport, because obviously swimming is not just about looking at going fast, but also to look at saving yourself in case of any particular events. So yes, I didn't think that it was possible to go to Olympics, but I had that determination and my coaches, and I had amazing coaches, friends and family to support me to continue the journey, and that's how I got here. It's an amazing feeling to know that you are now a part of the best athletes in the country and getting to represent in one of the pinnacle of sporting events. So it's an amazing feeling. But I don't think my past self would have even comprehend the fact that I'm even here today. So it is an amazing feeling. I'm quite calm at this point. I still have a couple of days to go. It's definitely exciting to be here, especially in the Olympic Village. It's a dream for every athlete to go to one Olympics, and I'm here and taking part in my second. So it feels great. And yeah, I'm looking forward to racing. So what have you learned from your हो गए हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले आ गए थे ना पेरिस में, तो वेदर से और रात यहाँ लेट होती है, तो सब चीजें सही हो गई हैं। You know anything what will happen, what will happen, but now the nerves are more calmer and more settled. I mean, again, like I said, it's even last time I didn't really have any nerves. I was quite composed and ready to compete. I think the biggest change is much more mature swimmer. What that means is I've understood the sport a lot better in the past few years, and I've understood myself and my body and how it works a lot better. So I think that's the biggest change from the past 3 4 years. कोशिश करेंगे जैसे आज रहा इससे और ज़्यादा अच्छा आगे करें, क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन बचा हुआ है।
बिल्कुल, लेकिन आपसे आप देखा जाए तो आपको लगता है कि यहाँ से अब बहुत रियलिस्टिक चांस है एक मेडल के हिसाब से? आप हाँ, वो तो सब पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस बार मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे। सब पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस बार मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे, तो वही सोच के चलाएंगे। हाँ जी, अगर मैं गलत नहीं तो वर्ल्ड कप तो चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है कि इस जगह पे खेला हुआ है, इस जगह का आइडिया है? हाँ जी, ये भी चीज बहुत मैटर करती है। इस जगह पे खेला हुआ है, इस जगह का आइडिया है। हाँ जी, ये भी चीज बहुत मैटर करती है। इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमेशा की कंडीशंस, यहाँ के वातावरण कैसा खेल है जो सब पे यूज्ड टू हुए विंड का बहुत हाँ जी, हो गए हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले आ गए थे ना पेरिस में, तो वेदर से और हाँ रात यहाँ लेट हो गए हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले आ गए थे ना पेरिस में, तो वेदर से और रात यहाँ लेट होती है, तो सब चीजें सही हो गई हैं। आगे ऐसे क्या चल रहा है? नर्व्स या एक्साइटमेंट? सब कुछ चल रहा है, सब चीजें चल रही है सर, सब चीजें चल रही है कि मतलब थोड़ी नर्वसनेस भी है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, सब चीजें चल रही है कि हाँ करना भी थोड़ी नर्वसनेस भी है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। आज रहा इससे और ज्यादा अच्छा आगे करें क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन मैं बचा हुआ अपना है। ये सीजन का बेस्ट स्कोर मारी हूँ, तो मैं सेटिस्फाई तो नहीं बोलूँगी पर अच्छा मारी हूँ मैं, और भी मार सकते थे, आपको लगता है तो कि धीरे धीरे होगा। बहुत रियलिस्टिक चांस है ओवरऑल? आप हाँ, वो तो सब पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस बार मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे, यस तो हाँ, वही मेरा सोच बेस्ट के अभी भी चलेंगे। आना बाकी है। मैं अपने तरफ से ये बेस्ट नहीं था, मैं और भी मार सकती थी। हाँ जी, तो हमेशा हम ये कहते हैं कि जो बेस्ट मारना है, कहते हैं बेस्ट टाइम पे मारना चाहिए, तो ये क्या इससे बेटर टाइम होगा जब टीम इवेंट में आप खेलेंगे? हाँ जी, ये भी चीज बहुत मैटर तो करती ये आपका है। बेस्ट टाइम है कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना? एक ऐसा खेल है हाँ, जो यही कि बेस्ट टाइम है विंड कि का बहुत बेस्ट important परफॉर्मेंस role देने होता का। है। तो यहाँ के मैं conditions, और भी यहाँ के अच्छा करूँ वातावरण, टीम में, विंड मिक्स इन टीम सब में पे या used to हुए हैं आप इंडिविजुअल में। हाँ जी, हो गए हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले आ गए थे ना पेरिस में, तो वेदर से और रात यहाँ लेट होती है, तो सब चीजें सही हो गई हैं। कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसा चलता है आपकी केमिस्ट्री ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड, ड्यूरिंग मैच केमिस्ट्री क्या है? वो मेरे भाई जैसे ही है, मतलब बिल्कुल हम लोग सब दीदी चीजें चल रही है सर। भाई जैसे मजाक करते सब हैं, चीजें चल और रही है वो बहुत कि समझाता मतलब भी है, थोड़ी मैं भी उसको नर्वसनेस समझाती भी हूँ। है, हम लोग थोड़ी इससे पहले भी एक्साइटमेंट खेले भी हैं, है, चाइना में भी खेले हैं, मतलब मिक्स कि हाँ टीम ब्रॉन्ज करना भी भी जीते ये थे भी है, सब वर्ल्ड चीजें कप में। कोशिश तो करेंगे अच्छा जैसे आज बनता है रहा हम लोगों इससे का। और ज्यादा अच्छा आगे करें क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन बचा हुआ के है। वातावरण से यूज हो जाए। और जैसे हम सब जानते हैं कि आर्चरी एक ऐसा खेल है, उस दिन विंड का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत चीजों को ध्यान में रख के खेलना पड़ता है। तो आपको लगता है इस हिसाब से आप यहाँ बहुत रियलिस्टिक चांस है, विंड इन सब हाँ, से वो तो सब पहले हाँ, से हम लोग यहाँ प्रैक्टिस एक कर हफ्ता रहे हैं और पहले ही यही आ सोच गए रहे थे, हैं कि तो इस बार विंड मतलब सब बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म हम लोग करके जाएंगे, जज कर पाए तो थे अच्छा से कि वही कब सोच के कहाँ से चलेंगे। कैसा कितना हेवीली विंड चलता है। यहाँ जैसे थोड़ा सा विंड चलता है तो वही इफेक्ट करता है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस किए थे, तो उसका आज रिजल्ट है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम जो परफॉर्मेंस आज किए, जो प्लान हम लोग पिछले 2 साल से ये भी चीज दिमाग में बहुत रख के चल रहा है कि मैटर करती है। गेम्स के लिए ऐसे प्रिपेयर होना है, हम लोग सही रास्ते पे है। एंड जैसे आज शुरुआत का रैंकिंग राउंड में थोड़ा बहुत हवा था, ट्रिकी कंडीशंस थे, पर बाद में हम लोग टीम में आपस में बातें किए, इन्फॉर्मेशन शेयर किए, जिसकी वजह से सेकंड राउंड बहुत अच्छा हुआ तीनों का। एंड आगे भी हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। रात यहाँ लेट होती है, तो सब चीजें सही हो गई अच्छा है। परफॉर्म किया, तो अब उस हिसाब से टीम इवेंट में आप डायरेक्ट क्वार्टर्स खेलेंगे, तो आगे ऐसे क्वार्टर सेमीज एंड देन फाइनल, फिर आप मेडल के लिए शॉट सब कुछ चल रहा है, ध्यान में रखते हो आप कितने सब खुश चीजें चल रही है सर। जी सब वो चीजें खुशी चल तो रही है है, कि पर उसको मतलब आने नहीं दे रहे हम लोग सिर्फ nervousness भी है, उसी थोड़ी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि excitement हम लोग को किस चीज़ मतलब पे कि काम हाँ, करना करना भी ये भी है। है, एंड उस सब दिन पे चीजें। उस कोशिश करेंगे पोडियम पे जो जैसे चीज़ें आज हमको रहा, करना है इससे वही हमको और मेडल ज्यादा लाएगा, अच्छा आगे चाहे करें, हम लोग पहले क्योंकि मैच से बहुत खेले या डायरेक्ट क्वार्टर से competition खेले, बचा तो हुआ है। हम लोग सिर्फ अपने प्रोसेस पे ही ध्यान दे रहे हैं। जिस हिसाब से आप देखा जाए तो लगता है कि यहाँ से अब बहुत रियलिस्टिक चांस है मेडल का। हाँ, वो तो सब पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि I'm really excited to be racing on Sunday. That's when my race is. I'll be swimming 200 freestyle, and there are a lot of amazing athletes who will also be racing the event. So I'm super excited to see how I can do. I'm just trying to focus on giving my best and seeing how much I can do in this particular time of the season. And I know that this is not my last Olympics, so there's a long way to go. So I'm mostly just excited, having fun in the moment. You know, did you imagine when you took up the sport that one day you would be representing India in Olympics, something as huge as Olympics, the biggest sporting extravaganza, 206 countries participating in it?
Yeah, I really didn't think I was think to go to the Olympics. Obviously, I did this sport just to have fun, to get some friends and learn it as a life-saving sport because obviously swimming is not just about looking at going fast, but also to look at saving yourself in case of any particular events. So yes, I didn't think that it was possible to go to Olympics, but I had that determination and my coaches, and I had amazing coaches, friends and family to support me to continue the journey, and that's how I got here. It's an amazing feeling to know that you are now a part of the best athletes in the country and getting to represent in one of the pinnacle of sporting events. So it's an amazing feeling. But I don't think my past self would have even comprehend the fact that I'm even here today. So it is an amazing feeling. So any role model in sport or swimming you had before you took up, or once you joined, or any player you saw you got excited watching him or her? Again, I have a lot of athletes that include from swimming from different countries and also who do sport in general, mostly in India when it comes to Chirag, Satvik, PT Usha, and there is Nikat Sareen and all those lot of amazing athletics and other athletes who play sport, which I really appreciate because I can't imagine doing the sport that they do to the level that they are doing it, which is amazing feat. And a lot of swimmers from different countries who also I really look up to and one day hope to be just like them. So yeah, I was kind of in shock that I got to see them here because I've always looked at them through the phone and never ever got to see them live right here in front of me. So it's an amazing feeling. Hopefully I get to see more of them later on as the coming days because we're here till first. So Well done, all the best. yeah, thank you so much. I'm really excited to be racing on Sunday. That's when my race is. I'll be swimming 200 freestyle and there are a lot of amazing athletes who will also be racing the event. So I'm super excited to see how I can do. I'm just trying to focus on giving my best and seeing how much I can do in this particular time of the season. And I know that this is not my last Olympics, so there's a long way to go. So I'm just mostly just excited, having fun in the moment. Did you imagine when you took up the sport that one day you would be representing India in Olympics, something as huge as Olympics, the biggest sporting extravaganza, 206 countries participating in it? Yeah, I really didn't think I was think to go to the Olympics. Obviously, I did this sport just to have fun, to get some friends and learn it as a life-saving sport because obviously swimming is not just about looking at going fast, but also to look at saving yourself in case of any particular events. So yes, I didn't think that it was possible to go to Olympics, but I had that determination and my coaches, and I had amazing coaches, friends and family to support me to continue the journey, and that's how I got here. It's an amazing feeling to know that you are now a part of the best athletes in the country and getting to represent in one of the pinnacle of sporting events. So it's an amazing feeling. But I don't think my past self would have even comprehend the fact that I'm even here today. So it is an amazing feeling. I'm quite calm at this point. I still have a couple of days to go. It's definitely exciting to be here, especially in the Olympic Village. It's a dream for every athlete to go to one Olympics, and I'm here and taking part in my second. So it feels great, and yeah, I'm looking forward to racing. So what have you learned from your previous experience? Last time you were there, that was the first one. Yeah. First one, you always have that butterflies in your stomach, and also have that thing that anything what will happen, what not will happen. But now the nerves are more calmer and more settled. I mean, again, like I said, it's even last time I didn't really have any nerves. I was quite composed and ready to compete. I think the biggest change is I'm a much more mature swimmer. What that means is I've understood the sport a lot better in the past few years, and I've understood myself and my body and how it works a lot better. So I think that's the biggest change from the past 3-4 years. Second Olympics, you're here in Paris for the second Olympics. How excited you are, and nerves before the game? I mean, not really. I'm quite calm at this point. I still have a couple of days to go. It's definitely exciting to be here, especially in the Olympic Village. It's a dream for every athlete to go to one Olympics, and I'm here and taking part in my second. So it feels great, and yeah, I'm looking forward to racing. So what have you learned from your previous experience? Last time you were there, that was the first one. Yeah. First one, you always have that butterflies in your stomach, and also have that thing that anything what will happen, what not will happen. But now the nerves are more calmer and more settled. I mean, again, like I said, it's
even last time I didn't really have any nerves. I was quite composed and ready to compete. I think the biggest change is I'm a much more mature swimmer. What that means is I've understood the sport a lot better in the past 4 years, and I've understood myself and my body and how it works a lot better. So I think that's the biggest change from the past 3-4 years. And a word on someone who's as young as 14 and representing the country in Olympics. I mean, that's brilliant. She trains really well. She swims really well. It's great that she's here, and it shows that there's so much left for her in the future. हमको बहुत अच्छा लग रहा है हम जो परफॉर्मेंस आज किए, जो प्लान हम लोग पिछले 2 साल से दिमाग में रख के चल रहा है कि गेम्स के लिए ऐसे प्रिपेयर होना है, हम लोग सही रास्ते पे है। एंड जैसे आज शुरुआत का रैंकिंग राउंड में थोड़ा बहुत हवा था, ट्रिकी कंडीशंस थे, पर बाद में हम लोग टीम में आपस में बातें किए, इन्फॉर्मेशन शेयर किए, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड बहुत अच्छा हुआ तीनों का। एंड आगे भी हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। चूँकि हुआ यह है कि अब जब से आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उस हिसाब से टीम इवेंट में आप डायरेक्ट क्वार्टर्स खेलेंगे, तो क्वार्टर्स, सेमीज एंड देन फाइनल, और फिर आप मेडल के लिए शॉट कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कितने खुश हैं कि आप बहुत करीब हैं? जी, वो खुशी तो है, पर उसको आने नहीं दे रहे हम लोग सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग को किस चीज़ पे काम करना है, एंड उस दिन पे उस पोडियम पे जो चीज़ें हमको करना है वही हमको मेडल लाएगा, चाहे हम लोग पहले मैच से खेले या डायरेक्ट क्वार्टर से खेले। तो हम लोग सिर्फ अपने प्रोसेस पे ही ध्यान दे रहे हैं। अच्छा किया, सबने लड़कियों ने भी अच्छा किया। तो ओवरऑल आप देखें तो आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है हम जो परफॉर्मेंस आज किए, जो प्लान हम लोग पिछले 2 साल से दिमाग में रख के चल रहा है कि गेम्स के लिए ऐसे प्रिपेयर होना है, हम लोग सही रास्ते पे है। एंड जैसे आज शुरुआत का रैंकिंग राउंड में थोड़ा बहुत हवा था, ट्रिकी कंडीशंस थे, पर बाद में हम लोग टीम में आपस में बातें किए, इन्फॉर्मेशन शेयर किए, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड बहुत अच्छा हुआ तीनों का। एंड आगे भी हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। चूँकि हुआ यह है कि अब जब से आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उस हिसाब से टीम इवेंट में आप डायरेक्ट क्वार्टर्स खेलेंगे, तो क्वार्टर्स, सेमीज एंड देन फाइनल, और फिर आप मेडल के लिए शॉट कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कितने खुश हैं कि आप बहुत करीब हैं? जी, वो खुशी तो है, पर उसको आने नहीं दे रहे हम लोग सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग को किस चीज़ पे काम करना है, एंड उस दिन पे उस पोडियम पे जो चीज़ें हमको करना है वही हमको मेडल लाएगा, चाहे हम लोग पहले मैच से खेले या डायरेक्ट क्वार्टर से खेले। तो हम लोग सिर्फ अपने प्रोसेस पे ही ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे देखा जाए तो क्या कहते हैं, टीम में जैसे आपके साथ हैं तरुणदीप राय, इतने एक्सपीरियंसड हैं, तो और आपके साथ और भी जो आपके साथी खिलाड़ी हैं जैसे प्रवीण जाधव, तो ये जो जोड़ी है आप लोग की, ये इसकी केमिस्ट्री बताइए, इतना अच्छा क्यों कर रही है? केमिस्ट्री सी क्या है? जी, सबसे पहले तो हम तीनों में एक कॉमन पॉइंट है कि हम तीनों आर्मी से पार्टिसिपेट करते हैं, और पिछले 5-6 साल से हम तीनों एक ही जगह ट्रेन कर रहे हैं, एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या इंटरनेशनली हो। हम लोग बहुत बार साथ में लड़े थे, और साथ में हारे, साथ में जीते, और साथ में सीखे भी। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता है टीम को कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और जहाँ तक आर्मी का ही बात हो, उधर ही हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ऑफ द सीजन भी, जब टूर्नामेंट भी नहीं रहता है तो हम लोग उधर ही ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो हमको एक दूसरे को जानने के लिए और आसान हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आर्चरी का कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंडीशंस, वेदर, विंड क्या है, और आज जैसा आप बताएं जब आप रैंकिंग सीरीज में तो विंड चल रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये लगता है कि आप इस कंडीशन से यूज्ड टू हैं? जी, इस बात के लिए मैं हमारा फेडरेशन और साई को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग को ऐसे जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है जहाँ कि हम लोग को हर कंडीशन से प्रैक्टिस मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके, और उस ट्रेनिंग के वजह से हम लोग के लिए जितना भी ट्रिकी कंडीशंस हो उतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हो चुके थे। एंड जहाँ तक जैसे जितना भी हम ट्रेनिंग करें ऐसे सिचुएशंस में, पर लास्ट में बात वही आ जाता है कि उस चीज़ को फेस कैसे करें। एंड जब आज हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, हम लोग का टीम का कोऑर्डिनेशन के वजह से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे, उसके वजह से तीनों का आसान हुआ। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो रहा ही, वो रहेगा ही, पर वो शेयरिंग करने के वजह से, टीम कॉम्बिनेशन के वजह से बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। और एक आपकी जोड़ी है, आपकी जो पार्टनर है अंकिता, उन्होंने भी आज बड़ा अच्छा शूट किया, मतलब बहुत अच्छा निशान लगाया उन्होंने। तो आपकी जो उनके साथ जुगलबंदी है, जो पार्टनरशिप है, उसके बारे में बताइए। जी, जैसे जैसे हम लोग ट्रेनिंग सेशंस में टीम का प्रैक्टिस करते रहे, वैसे ही मिक्स टीम का भी प्रैक्टिस करते रहे। हम तीनों
लड़के तीनों लड़कियों के साथ ट्रेनिंग सेशंस में बहुत बार प्रैक्टिस किए एंड बहुत बार मैचेस भी खेले एंड इस साल जैसे कि शुरुआत से ही सेम टीम रहा तो सबके साथ हम लोग को पोडियम मैचेस में खेलने का अवसर मिला, मौका मिला। तो वो चीज़ें भी हम लोग को पता है कि एक दूसरे को क्या की पॉइंट्स बोलना है, कौन कहाँ स्ट्रांग है, किसको कहाँ पुश करना है। सो ये हम लोग को एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता कि कौन खेल रहा है, पर एक इंडियन टीम होते हुए कोई भी खेले हम सब उसको पुश करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो आपके लिए एक चीज खास है, 3 मेडल पे आप शॉट लगा सकते हैं, निशाना लगा रहे हैं आप। एक तरह से इंडिविजुअल भी है, मिक्स टीम भी है और मेंस टीम भी है। तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं, आपके पास मौका है 3 मेडल लाने का? जी अभी सबसे पहले मैं इंडिविजुअली ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने सिर्फ टीम है, क्योंकि वो सबसे पहले इवेंट 29 को होने वाला है। तो अभी मेरा जितना भी फोकस, प्लानिंग, जो भी स्ट्रेटेजीज है वो सिर्फ 29 के लिए, क्योंकि हर चीज एक इकट्ठा करके देखेंगे तो वो ज्यादा बड़ा ही दिखेगा। तो हम लोग 1 एट ए टाइम करके एक एक चीज में पूरा दम लगा के मेहनत करेंगे एंड बाकी जो रिजल्ट हो उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल। और थैंक यू। मैं अपना ये सीज़न का बेस्ट स्कोर मारी हूँ, तो मैं सेटिस्फाई तो नहीं बोलूँगी पर अच्छा मारी हूँ मैं, और भी मार सकते थे, तो धीरे धीरे होगा। बिल्कुल। तो ओवरऑल आप जैसे आप देख रही हैं, जैसे आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक दिया, तो यहाँ से आपको ये लगता है कि आपने ये बेस्ट दिया, लेकिन आपका बेस्ट अभी भी आना बाकी है? यस, हाँ, मेरा बेस्ट अभी भी आना बाकी है। मैं अपने तरफ से ये बेस्ट नहीं था, मैं और भी मार सकती थी। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि जो बेस्ट मारना है, कहते हैं बेस्ट टाइम पे मारना चाहिए। तो ये क्या इससे बेहतर टाइम होगा जब टीम इवेंट में आप खेलेंगी, मिक्स्ड इवेंट पे खेलेंगी, इंडिविजुअल खेलेंगी? तो ये आपका बेस्ट टाइम है कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे दें अपना? हाँ, यही बेस्ट टाइम है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। मैं और भी अच्छा करूँ टीम में, मिक्स टीम में या इंडिविजुअल में। तो ये आप अपनी जोड़ी जो है आपकी धीरज के साथ, उसको कैसे डिफाइन करती हैं? जो आपकी जो जुगलबंदी है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? कैसा चलता है आपकी केमिस्ट्री ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड, ड्यूरिंग मैच? केमिस्ट्री क्या है आपकी? वो मेरे भाई जैसे ही है, मतलब बिल्कुल हम लोग दीदी भाई जैसे मजाक करते हैं, और वो बहुत समझाता भी है, मैं भी उसको समझाती हूँ। हम लोग इससे पहले भी खेले हैं, चाइना में भी खेले हैं, मिक्स टीम ब्रॉन्ज भी जीते थे वर्ल्ड कप में, तो अच्छा बनता है हम दोनों का। तो कह रहे थे कि भारतीय आर्चर्स जो थे, जो बहुत पहले आ गए थे यहाँ पर, ताकि यहाँ के वातावरण से यूज टू हो जाएं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आर्चरी एक ऐसा खेल है, उस दिन विंड का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के खेलना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ की कंडीशंस, एटमॉस्फेयर, विंड, इन सबसे यूज टू हो गए? हाँ, हम लोग यहाँ 1 हफ्ता पहले ही आ गए थे, तो विंड सब कुछ हम लोग जज कर पाए थे अच्छा से कि कब कहाँ से कैसा कितना हेवीली विंड चलता है। यहाँ जैसे थोड़ा सा विंड चलता है तो वही इफेक्ट करता है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस किए थे, तो उसका आज रिजल्ट है। तो आपका इंडिया का काफी अच्छे इंडियन आर्चर्स ने अच्छा आज शूट किया, आज अच्छा मतलब बिल्कुल निशाना लगाया, लेकिन आप खुद अपने परफॉर्मेंस को कैसे देखती हैं? मैं अपना ये सीज़न का बेस्ट स्कोर मारी हूँ, तो मैं सेटिस्फाई तो नहीं बोलूँगी पर अच्छा मारी हूँ मैं, और भी मार सकते थे, तो धीरे धीरे होगा। बिल्कुल। ओवरऑल आप जैसे आप देख रही हैं, जैसे आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक दिया, तो यहाँ से आपको ये लगता है कि आपने ये बेस्ट दिया, लेकिन आपका बेस्ट अभी भी आना बाकी है? यस, हाँ, मेरा बेस्ट अभी भी आना बाकी है। मैं अपने तरफ से ये बेस्ट नहीं था, मैं और भी मार सकती थी। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि जो बेस्ट मारना है, कहते हैं बेस्ट टाइम पे मारना चाहिए। तो ये क्या इससे बेहतर टाइम होगा जब टीम इवेंट में आप खेलेंगी, मिक्स्ड इवेंट पे खेलेंगी, इंडिविजुअल खेलेंगी? तो ये आपका बेस्ट टाइम है कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे दें अपना? हाँ, यही बेस्ट टाइम है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। मैं और भी अच्छा करूँ टीम में, मिक्स टीम में या इंडिविजुअल में। तो ये आप अपनी जोड़ी जो है आपकी धीरज के साथ, उसको कैसे डिफाइन करती हैं? जो आपकी जो जुगलबंदी है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? कैसा चलता है आपकी केमिस्ट्री ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड, ड्यूरिंग मैच? केमिस्ट्री क्या है आपकी? वो मेरे भाई जैसे ही है, मतलब बिल्कुल हम लोग दीदी भाई जैसे मजाक करते हैं, और वो बहुत समझाता भी है, मैं भी उसको समझाती हूँ। हम लोग इससे पहले भी खेले हैं, चाइना में भी खेले हैं, मिक्स टीम ब्रॉन्ज भी जीते थे वर्ल्ड कप में, तो अच्छा बनता है हम दोनों का। तो कह रहे थे कि भारतीय आर्चर्स जो थे, जो बहुत पहले आ गए थे यहाँ पर, ताकि यहाँ के वातावरण से यूज टू हो जाएं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आर्चरी एक ऐसा खेल है, उस दिन विंड का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत चीज़ों को
ध्यान में रख के खेलना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ की कंडीशंस, एटमॉस्फेयर, विंड, इन सबसे यूज्ड टू हो गई? हाँ, हम लोग यहाँ एक हफ्ता पहले ही आ गए थे, तो विंड सब कुछ हम लोग जज कर पाए थे अच्छा से कि कब कहाँ से कैसा कितना हेवीली विंड चलता है। यहाँ जैसे थोड़ा सा विंड चलता है तो वही इफेक्ट करता है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस किए थे, तो उसका आज रिजल्ट है। बिल्कुल। और आपकी टीम एक सीनियर मोस्ट खिलाड़ी जिनका नाम दीपिका है, दीपिका कुमारी, इतनी पुरानी, इतने ओलंपिक्स खेल चुकी हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड, कहाँ वर्ल्ड कप गोल्ड, ना जाने कितने मेडल्स होंगे यहाँ पे, तो वो कितनी बड़ी गाइडेंस फोर्स होती हैं आपके लिए? उन्होंने आने से पहले ही कहा था कि ये ओलंपिक है, तो यहाँ बहुत मतलब ऐसे ही मीडिया वाले आएंगे, बहुत कैमरा होगा पीछे, तो उस सब चीजों में ध्यान मत देना, अपने खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करना, तो ही तुम अच्छा रिजल्ट कर पाओगी। तो जब आज हम लोग ग्राउंड में गए थे, प्रैक्टिस में इतना मीडिया वाले नहीं थे, पर आज बहुत सारे थे। मैं पहले ही देख के मतलब इतना लोग, फिर उन्होंने कहा कि ये सब चीजों में ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर फोकस करो। भजन जी, हाँ, आज रैंकिंग इवेंट था ओलंपिक से पहले, जो कि सीडिंग से एक तरह से डिसाइड करता है स्कोर के हिसाब से। आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे रेट करती हैं? जैसा स्कोर था, आप कैसे रेट करती हैं? अच्छा रहा सब, और कोशिश करेंगे जैसे आज रहा इससे और ज्यादा अच्छा आगे करें, क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन बचा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आपके परफॉर्मेंस से आप लोग सीधा टॉप लेवल पहुंच के क्वार्टर्स पे सीधा दस्तक देते हैं, तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो आपको लगता है कि यहाँ से अब बहुत रियलिस्टिक चांस है एक मेडल का? हाँ, वो तो सब पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस बार मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करके ही जाएंगे, तो वही सोच के चलाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वर्ल्ड कप हुआ था पेरिस में 2023 में, उसमें भी इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। नेक्स्ट में खासकर ब्रॉन्ज आया था, तो उस हिसाब से उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि इस जगह पे खेला हुआ है, इस जगह का आइडिया है। हाँ जी, ये भी चीज बहुत मैटर करती है। अच्छा, हमेशा हम ये कहते हैं कि आर्चरी एक ऐसा खेल है जो कि विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ के कंडीशंस, यहाँ के वातावरण, विंड, इन सब पे यूज्ड टू हुए हैं आप निशाना लगा के? हो गए हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले आ गए थे ना पेरिस में, तो वेदर से और रात यहाँ लेट होती है, तो सब चीजें सही हो गई हैं। तो अब बस तो अब आगे ऐसे क्या अंदर चल रहा है? नर्व्स या एक्साइटमेंट, सब कुछ करना है? सब चीजें चल हंगर? रही है, सब चीजें चल रही है कि मतलब थोड़ी नर्वसनेस भी है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, मतलब कि हाँ करना भी है, ये भी है, सब चीजें। आपकी टीम में एक बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं जो कितने ओलंपिक खेल चुके हैं, वो इतने सारे मेडल्स होंगे, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सब में, तो इन सबको ध्यान में वो कैसे गाइड करती हैं आप लोग को, सीनियर मोस्ट खिलाड़ी होकर? वो बहुत सही तरीके से गाइड करती हैं, जैसे अगर हम लोग कोई गलती भी करते हैं तो वो तुरंत बता देते हैं कि मतलब ऐसे करो या फिर ऐसे करो, और जैसे पोडियम मैचेस में संभालने में बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू सर।